Fine. So AC current, NCERT एग्जाम्पल नंबर 7.8. मुद्दे पे आएंगे सीधा. चलो क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर 4 मार्क्स. समझदार को इशारा काफी. अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पिक वैल्यू 283. तो आपको दिया है पिक वैल्यू मतलब Vm. मैक्सिमम वैल्यू दिया है आपको. कितना दिया है बेटा? 283 वोल्ट पिक वैल्यू. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. वी हैव फ्रीक्वेंसी गिवन 50 hertz is applied to a series circuit of RLC. Series में तीनों. R is 3, L is 25.48 milli Henry, and capacitance is 796 microfarad. Right? These all three are connected in series with this circuit voltage. क्या find करना है आपको? You first want to find the impedance, the phase difference, the power dissipated and power factor. चार चीजें फाइंड करनी है आपको. ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा इंपिडेंस. इंपिडेंस मीन Z. इंपिडेंस इज Z and Z is equal to under root of R square plus XC minus XL whole square. XC is equal to 1 by omega C. XL is omega into L. We'll put all the values here. Check out what resistance is given. Resistance given is 3. Omega is 2 pi f. Let's find the omega here separately. Omega is 2 pi f. 2 into pi into 50. That is 314 radian per second. Let's put it here. So 1 by omega into C. What is the capacitance value? Capacitance is 796 into 10 power minus 6 minus omega into L. What is omega? 314. हमने फाइंड कर लिया ओमेगा ऊपर. ओमेगा विल पुट 314 and value of XL. L कितना है? L is 25.48 into 10 power minus 8. Sorry, minus 3. कितना आ रहा है देखो तो जरा. Find out this value. What you are getting? 3 square is 9 plus what is this value? 10 power 6 by 314 by 796 करो. 10 power 6 divide by 314 divide by 796 करो. कितना आ रहा है? 4. This value is 4. What about this value? 5. Check it properly. 8. उसका स्क्वायर करेंगे. चलो ध्यान यहाँ पे. So what you will get? You will get under root of 9 plus 8 minus 4. 4 square is 16. Under root 16 plus 9. Under root 25. That is 5 ohm. So you got your first answer. Impedance Z is equal to 5 ohm. खाली वैल्यू रखने बेटा और कुछ नहीं करना है. Impedance Z is equal to 5 ohm. चलो second what you want to find here? The phase difference. Phase difference is 10 phi. Let's find the second answer. Phase difference. Phase difference. So बेटा phase difference हम कैसे find करते हैं? 10 phi. 10 phi is equal to XC minus XL by R. अब देखो, अब ध्यान से देखो. XC ये रहा आपका. XC equal to 4. XC equal to 4. XL ये रहा. XL equal to 8. Divide by resistance. Resistance equal to 3. So it is going to be minus 4 by 3. That's the value of 10 phi. So phi would be equal to 10 inverse of minus 4 by 3 मतलब minus 1.333. चलो minus 1.333 के रिलेटेड एंगल चेक करेंगे. लेट्स से कितना एंगल आ रहा है. सो वी हैव अ टेबल हियर. 1.333. ये साइन का टेबल है. आपको 10 का टेबल देखना है. आ जाओ. ये बहुत लोड लेता है. नंबर जितने सारे हैं ना इसमें. ये कोसाइन. इसके बाद 10 टेबल है. अब आएगा 10. बेटा वैल्यू कितना था? 1.333. आपको एंगल लेना है. ठीक है ना. तो चलो 10 का टेबल गया. ये है ना. दैट्स अ 10 टेबल. ओके, व्हाट वैल्यू डू वी हैव? ये 10 है. राइट. देख लो नेचुरल टेंजेंट कितना वैल्यू है. ये सारे वैल्यू है. आपको कितना वैल्यू चाहिए? 1.333. अभी देखो 0.9 आजू बाजू था ये. सी अब 1 पॉइंट आ चुका है. अपने को चाहिए 1.33. Where is it? 1.33 ये रहा देखो. 3319.
तो ये वैल्यू आप ले सकते हो, कहाँ क्या 3319 यू कैन टेक। कितना आ रहा है 53 डिग्री, डिग्री कितना है बेटा, देखो ये रहा, द वैल्यू इज, क्या हुआ इसको, सी दिस इज अ वैल्यू 1.33, डिग्री इज हाउ मच 53 एंड मिनट इज हाउ मच 0.1, सो कितना एंगल आएगा 53.1, कितना एंगल लिखेंगे बेटा 53.1, सो दिस इज गोइंग टू बी 50, this is 53.1 degree, negative sign, is it leading or lagging, lagging because minus आया है आंसर, so what we write here, current lags, we have to write properly, current lags voltage, current lags behind voltage, current lags behind the voltage by 53.1 degree, current lag कर रहा है voltage को by what degree, 53.1. third what you want to find, you want to find the power dissipated in the circuit and you also want to find the power factor. पहले power factor find कर लेते हैं. Before that I'll have to one slide, one slide here, slide. Okay, fine. So now first find power factor. पहले D का आंसर निकाल लेते हैं. पावर फैक्टर बेटा ध्यान यहाँ पे, पावर फैक्टर इज cos phi. What is cos phi? R by Z. If you know the triangle, cos phi equal to R by Z, power factor. What is the value of R? 3. What is the value of impedance? Impedance कितना आया था 5. So power factor cos phi is equal to 3 by 5, that is 0.6. So power factor is equal to 0.6. Power factor is 0.6. Now let's find the power in the circuit. चलो power in the circuit. क्या पूछा है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड. चलो पावर कौन सा कंपोनेंट डिसिपेट करता है, रेजिस्टेंस. पावर कौन सा कंपोनेंट डिसिपेट करता है, पावर इज डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर एंड इंडक्टर तो पावर को लॉस करे बिना ही करंट ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो पावर लॉस है दैट हैज टू बी I स्क्वायर इंटू आर. कितना लेंगे पावर लॉस, I स्क्वायर इंटू आर. ओके फाइन. सो वी राइट हियर पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर. कौन सा I लेंगे, RMS वैल्यू. यू ऑलवेज हैव टू टेक RMS वैल्यू, राइट. वी कैन मेंशन हियर दैट कैपेसिटर एंड इंडक्टर लॉस नो पावर. ये तो एनर्जी को स्टोर करके वापस रिटर्न करते हैं, लॉस कौन करता है, रेजिस्टेंस. So your answer is IRMS कितना होता है, IM by root 2 whole square into R. What is the maximum value of current given that 280. करंट का वैल्यू दिया है क्या, करंट दिया है यहाँ पे, नहीं दिया है. सो करंट आपको ढूंढना पड़ेगा. लेट्स फाइंड आउट द करंट. चलो करंट कितना हो जाएगा, V by Z. करंट ढूंढना पड़ेगा ना. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट वुड बी इक्वल टू VM by Z. व्हाट इज VM, 283. What is Z, 5. कितना आएगा ये 60, 56.66. Okay, it is 56.66 एम्पियर चलेगा. 56.6 लो. तो ये हमने करंट का वैल्यू निकाल लिया, मैक्सिमम ये वैल्यू यहां रख देंगे. वन आंसर वी आर गोइंग टू गेट 56.6 डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 3 ओम. कितना आंसर आएगा, 56.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3. 56.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3. व्हाट इज योर आंसर, कितना आया 4.8. पूरा आंसर ओवरऑल 4800 watt. So this is the power dissipated by the रेजिस्टेंस. अगर आपको ऐसा पूछा होता ना सर्किट में पावर कितना है, तो सर्किट में पावर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi. आपको ये पूछा है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेट कौन करता है, खाली रेजिस्टेंस. कितना पावर डिसिपेट करेगा, I स्क्वायर इंटू आर. कौन सा I लेंगे, RMS वैल्यू. RMS वैल्यू क्या होता है, IM बाई √2. IM कहां से मिलेगा, तो IM इक्वल टू VM बाई Z. तो ये वाला पार्ट आपको खास ध्यान
रखना है। ओके, क्लियर क्वेश्चन, 4 मार्क का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरिड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर। चलो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 क्या होता है बेटा, 1/√LC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। इसी क्वेश्चन को कैरी करना है, 25.48 मिली हेनरी। What is the value of capacitance C equal to 796 into 10 power minus 6. 796 into 10 power minus 6. What answer you are going to get? पहले ना आपको यहाँ पे 10 पावर इवन करना पड़ेगा, ये ऑड रह रहा है 10 पावर माइनस 9, अंडर रूट नहीं निकलेगा, आपको पहले इसको इवन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको इवन करने के लिए, आप एक काम करो बेटा, इसको आप लिख दो 2.548, ये हो गया 10 पावर माइनस 2 इंटू 796, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 6, दैट इज 10 पावर माइनस 8। उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4। इसका अंडर रूट बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 45 एग्जैक्ट। चलो 10 पावर 4 ऊपर लेके डिवाइड करो, 10 पावर 4, 10,000 डिवाइड बाय 44 करो, 45 कितना आ रहा है, 0 नहीं आएगा, 10 पावर 4 मल्टीप्लाई करो 3.2। गुस्सा क्या कर रहे हो उसमें, 222.2। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइंड किया हमने, ये क्या है बेटा, ओमेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई एफ। 2 पाई नीचे डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 35.3 हर्ट्ज। ये 5 ही लिखा है, ये तो हो गया ऐसा, इंटेंशन 5 ही लिखने का था, 35.3 हर्ट्ज। चलो और क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द इंपीडेंस, करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन। तो बेटा रेजोनेंस के ऊपर एक्सएल एक्स तो वैसे ही कट जाता है, आगे ना। सो वी राइट हियर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ही क्या था बेटा, एक्सएल एक्स यार सेम। तो बचेगा क्या, जेड में खाली आर ही बचेगा, क्योंकि एक्सएल एक्स तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। तो जेड आर कितना था आपका, 3 ओम था, आगे वाले क्वेश्चन को ही कैरी करना है, आर इक्वल टू 3 ओम, क्योंकि रेजोनेंस पे ये दोनों तो ऐसे भी कट हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो करंट आई एम क्या लिखेंगे बेटा, वी एम बाई जेड। कितना वी एम था, 283 था ना, और कितना बचा है, जेड इक्वल टू 3, कितना आएगा आंसर, 94.3 एम्पियर। तो दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। और क्या फाइंड करना है बेटा, ओके, इंपीडेंस हो गया, करंट हो गया, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। चलो पावर की बात करते हैं, पावर डिसिपेटेड, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। कौन सा वैल्यू, आरएमएस। आरएमएस क्या होगा, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, उसका स्क्वायर इंटू आर। कितना मैक्सिमम वैल्यू है, 94.3 √2 स्क्वायर इंटू आर कितना है, 3। कितना आंसर आ रहा है, ये सारे पूरे चैप्टर के अंदर छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही है, कोई बड़े फॉर्मूला है नहीं इसमें। और आंसर क्या गेटिंग, 1,333 8 एक और 3 है, चल भाई 1,333.8 फिर तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अंडरस्टूड। कल शेयर किया था ना पीपीटी लिखने के लिए, कल शेयर नहीं किया था, किया था ना, मतलब तो क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ ही रहते हैं ना, तेरे को कैसे पता चला पेरेंट्स ग्रुप में शेयर किया था।
तुम पेरेंट्स से अलग रहते हो, आइसोलेटेड। चलो नेक्स्ट, पहले इसको सेव करते हैं। क्या बोला? बस बोला, बोलो। पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। चलो अब क्या है देखो तो, एट एयरपोर्ट, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू अ डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ऐसे बता है टू 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 टू, और मेजोरिटी तो बंद ही होता है पर एयरपोर्ट पे चालू होता है, बाकी अपने यहाँ पे लोग ऐसे कैसे ऐसे करते हैं, कुछ है नहीं है जाओ। तो ये एक प्रो मेटल डिटेक्टर होते हैं, ये एयरपोर्ट वाला मेटल डिटेक्टर है। इफ शी और ही इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द डिटेक्टर वर्क? डिटेक्टर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तुमको बताना है। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं इसमें। तो आपका जो डिटेक्टर होता है ना बेटा, सपोज डिटेक्टर है, सो डिटेक्टर कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। इसमें क्या होता है, वायर का कॉइल होता है ऐसे, वायर का कॉइल, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक टाइप का इंडक्टर, और इस सर्किट के साथ जोड़ा होता है कैपेसिटर, और इसको ना रेजोनेंस पे सेट किया होता है ताकि करंट मैक्सिमम हो। इसको रेजोनेंस पे सेट किया होता है ताकि करंट कैसा हो, मैक्सिमम। अब जैसे ही आप कोई मेटल का पीस अंदर लेके जाओगे, तो मेटल पीस है सर्टेन रेजिस्टेंस, जैसे ही वो रेजिस्टेंस इसमें से जाने की कोशिश करेगा, इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, इसका रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा, सायरन चालू हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा होता है ये, राइट। ये पहले से रेजोनेंस पे ट्यून किया होता है। अब जैसे ही कुछ आप मेटल लेके जाओगे, उसका रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होते ही सायरन चालू हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, टेक्स्ट बुक लाइए, इसके स्टेटमेंट देखते हैं, और ये आपको खुद ही लिखना है होमवर्क में। लाओ टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट, विल रीड एंड डिस्कस। द स्टेटमेंट्स आर, the metal detector works on the principle of resonance in AC circuit. When you walk through a metal detector, you are in fact walking through a coil of many turns. I told you like this. This is the detector which contain a coil. So you are ultimately walking through a coil of many turns. Okay. The coil is connected to a capacitor. क्या जोड़ा था मैंने इस coil के साथ? एक कैपेसिटर जोड़ा था कि नहीं? Right? And which is tuned so that the circuit is in resonance. So right now this circuit is in resonance. So detector has a coil connected with a capacitor and which are tuned in resonance. Now what will happen? When you walk through with the metal in your pocket, the impedance of the circuit change, because जैसे ही resonance आएगा, overall जो impedance होता है Z वो change हो जाएगा, resulting in significant change in current, because जैसे ही resonance change होगा, current बहुत change होने वाला है, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। जैसे ही रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा, करंट ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, राइट। दिस चेंज इन करंट इज डिटेक्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कॉज अ साउंड टू बी एमिटेड एज एन अलार्म। तो इसके साथ एक अलार्म जुड़ा होगा जो करंट जैसे ही चेंज होगा उसको डिटेक्ट करेगा और साउंड चालू कर देगा। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू राइट दिस? एग्जाम में आया तो बेटा ऐसा ही लिखना है, कुछ और मत लिख देना एग्जाम में कि हम जेब में कुछ लेके जाएंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ मत लिखना। सो राइट हियर, डिटेक्टर हैज coil of several turns, connected with capacitor, which is tuned in resonance, okay? Which is tuned in resonance. Now on carrying metal in pocket, on carrying metal through it, pocket गया तेल लेने, on carrying metal through it, impedance changes, impedance of circuit changes, hence current changes drastically and
Detector emits sound. Detector emits sound. तो ऐसा आपको टेक्निकल लिखना, ये वर्ड आना चाहिए, नहीं तो तुमको 0 ही मिलेगा। ये आना चाहिए कि सर्किट रेजोनेंस में है, फिर आप मेटल कैरी करोगे तो इंपीडेंस चेंज होगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा तो अलार्म बजने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, and the question is show that in free oscillation of LC circuit sum of energy stored in capacitor and inductor is constant all the time. LC ऑसिलेटर में आपने ऐसा देखा था कि स्टार्टिंग में सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास होती है, फिर वो एनर्जी किसके पास जाती है? इंडक्टर के पास। वापस कहां आती है? कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये चलता रहता है। आपको ये बताना है कि टोटल सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल सम कैसा होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। सो वी राइट हियर इन एलसी oscillatory circuit, in LC oscillatory circuit, tell me what is the formula of current? Current varies as Qm cos omega t. This was the equation of current. Current varies as Qm cos omega t. इसका डेरिवेशन किया था हमने। Sorry, charge varies as Qm cos omega t and current varies as Qm omega sin omega t. Current varies as Qm omega sin omega t. Okay, now let's write down. Say at some moment, let's say at some moment, energy on capacitor, at some moment, energy on capacitor, energy capacitor is in form of electric energy. क्या लिखेंगे उसको? q square by 2c. q कितना है? Qm cos omega t whole square divide by 2c. That's the energy of capacitor, जो कैपेसिटर के पास है। इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होगी उसी टाइम पे? लेट्स चेक आउट एनर्जी ऑन इंडक्टर। बेटा इंडक्टर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है? हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है बेटा? हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। हाफ इंटू एल इंटू व्हाट इज आई? स्क्वायर करो उसका। Qm ओमेगा sin omega t whole square, that is equal to half into L omega square Qm square sin square omega t. Agree? कैपेसिटर Q square by 2c एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर स्टोर करता है। यहाँ Q का फॉर्मूला डाल दो, यहाँ L का फॉर्मूला डाल दो। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट? ओमेगा क्या होता है? 1 by under root LC। ओमेगा क्या होता है? Let's write it here. For LC oscillation, omega क्या होता है? 1 upon under root of LC. So what we can write? Omega square equal to 1 by LC. तो देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 1 by C। ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, जो यहाँ पे आपका टर्म है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 by C. So I am putting 1 by C here. Qm square sin square ओमेगा t, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। इसकी जगह पे हमने रखा है 1 by C एंड रीजन इज दैट। अब दोनों को बेटा प्लस करते हैं, देखते क्या आता है प्लस करने पे। सो वी कैन राइट हियर टोटल एनर्जी इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी रहा बेटा 1 by 2c Qm square cos square omega t एंड मैग्नेटिक एनर्जी ये रहा 1 by 2c। 1 by 2c, इसमें c कहां गायब हो गया? इसमें भी नीचे c है ना, यहां पे तो है नीचे 1 by 2c रहेगा ना। सो 1 by 2c Qm square cos square omega t, यहां पे भी क्या आ रहा है? 1 by 2c Qm square sin square omega t। अब होशियार लोग तो समझ ही चुके हैं ये कांस्टेंट आने वाला है। क्या कॉमन निकालेंगे बेटा? Qm square by 2c कॉमन, क्या बचेगा? cos square प्लस sin square। cos square प्लस sin square क्या होता है? 0। दैट इज Qm square by 2c। अब इसमें टाइम है ही नहीं। Qm क्या है बेटा? Qm इज द कैपेसिटर चार्ज जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, वो कांस्टेंट है।
कैपेसिटर का स्टार्टिंग का चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये टोटल एनर्जी भी कैसी हो गई, कांस्टेंट। ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, दिस बिकम कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट, दिस इज टाइम। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2 से, इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल स्क्वायर। Q क्या होता है, QM cos ओमेगा टी, I क्या होता है, IM sin ओमेगा टी। नेगेटिव साइन आता है बट आप इग्नोर कर सकते हो, अगर स्क्वायर ही करना है ना तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। यहां पे एक चेक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां पे आपको L ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 1/c रखना है, और यू कैन डायरेक्टली राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। L कट होगा, नीचे C बच जाएगा। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। उसके बाद आपको प्लस करना है तो QM²/2C कॉमन आ जाएगा, एंड यू विल गेट दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मींस टोटल एनर्जी बिकम कांस्टेंट। Understood? So that is all about the examples of this chapter. Now we are going to discuss about the exercise question, but in next part.